Dr. Sunanda Dubey. So I welcome Professor Monica Jain ji from Banasthalli, and we will. I hope that we will have a nice lecture deliberation on geriatric nutrition, and this is the need of the hour because everyone wants to look young and healthy, and this appreciation is utmost likely to be heard. Compliment that you are looking very less of your age. I hope and wish that all students would enjoy this lecture of Monica Jain. A hearty welcome, ma'am, and please proceed with your lecture. Thank you, Shubham, for calling me to join. थैंक यू मैम आपने तो बहुत अच्छे से सब सपोर्ट करके मैनेज करवा दिया मैम। आज भी हम बहुत परेशान हो रहे थे कैसे मैनेज कर पाएंगे ऑनलाइन कॉलेज और क्लास और घर सब कैसे करेंगे। आपने बस there is a will, there is a way. ओके मैम, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा मैम। Okay, so I will take leave. Okay. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Your support means a lot to us. Okay, thank you, ma'am. So, Shubham, you will continue now, no? No, I think you should continue. You must introduce Monica, ma'am. Okay. Sure. Okay. Good afternoon to all of you. I, Dr. Ashna Saxena, convener Home Science, CSJM University, Kanpur. Thank you for joining us today. I extend my special thanks to the Principal DG College, who, irrespective of her busy schedule, take keen interest in the ongoing pre-PhD classes. Thanks, ma'am, for your cooperation. We hope today's session will prove to be of great academic and non-academic use to all our attendees. I'm sure it will. For our speakers, merit warrants it. I take pleasure in inviting to the floor our speaker for the day, Dr. Monica Jain. Dr. Monica Jain has been associated with Vanasthali Vidyapeeth since last 24 years, where she is currently designated as Professor, Food Science and Nutrition. She did her Master's in Nutrition from MS University, Baroda, and her PhD from Vanasthali Vidyapeeth. She is NET and SLET qualified. Bestowed with superb teaching skills, she is adorned by her students. Pediatric and geriatric nutrition are her areas of research interest. Her research credentials include above 60 quality publications, including Scopus indexed ones. Dr. Jain has also been a part of different projects sponsored by UNICEF and UGC. She is a designated mentor of food-based startups in Atal Incubation Center of Vanasthali Vidyapeeth and is a member of Life Skills Curriculum Development Committee of UGC. Dr. Monica Jain talks on health and nutrition can be listened on different radio channels. She is a sought-after speaker on scientific and non-scientific platforms. Thank you for joining us today, ma'am. We can't wait to hear what you have to share. The floor is yours now. So, ma'am, come on, ma'am, take over. Thank you so much for your kind words, Archana madam. That is truly very gracious of you. And at the outset, let me greet and say a namaskar to one and all, including respected principal madam, you, Shubham madam, and other staff members, and all the dear students who are present here. Now, as it is already known to each one of you, my topic of presentation is geriatric nutrition, and for that, since I would be sharing my slides, I would request the host to give me the rights to share the screen. As of now, you can share the screen. No, the rights are with the host. It has been okay, disabled. Let me see. I'm making you host, ma'am,
for the time being. Okay. Okay. Now you can share. But then you have to admit also the people, Okay. students. Okay. You have to admit the students then. Okay. But I think so all the students have joined. So No, no there is will one be who is joining. joining. There is one who is joining. No, I have admitted Vidya. Thank you so much, ma'am. Okay, okay, okay. Great. Yeah, yeah. Okay. Now, just want to know if the slides are visible. Yes, ma'am, visible. Okay, thank you so much. I will bring it to the slideshow mode in a while. And first of all, let me wish you all a very happy National Dietetics Day. Those who are into nutrition, they must be aware कि 10 जनवरी को हम लोग पिछले कई सालों से देश में डायटेटिक्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसका जो पर्पस होता है वो डायटेटिक कम्युनिटी को मोबिलाइज करना, सेंसिटाइज करना होता है ताकि वो एक थीम पर लेके कार्य कर सकें और जन चेतना को जागृत कर सकें। और इस बार वर्ष 2022 में डायटेटिक्स डे का जो थीम है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इट इज dietary diversification, the need of the hour. और ये जो बात है dietary diversification, the need of the hour, ये हर एज ग्रुप के न्यूट्रिशन पर अप्लाई होती है। सो अगर हम हर एज ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हम न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं। आप सभी को ये पता होगा कि जब हमको आज़ादी मिली वर्ष 1947 में, उस समय हम एक गरीब देश हुआ करते थे, अकाल से जूझ रहे थे और लोगों के पास खाना नहीं था खाने को। बहुत जबरदस्त पैमाने पे, बड़े पैमाने पे हम देखते थे रैम्पेंट मैलन्यूट्रिशन, कुपोषण बहुत था और सिर्फ बच्चों में ही नहीं, हर उम्र के लोगों में हमें कुपोषण देखने को मिलता था। धीरे धीरे हमारी अपनी जब सरकारें आने लगी तो 5 ईयर प्लान्स बनने लगे और जो सबसे पहला 5 ईयर प्लान था उसी में ही एग्रीकल्चर को फोकस किया गया और धीरे धीरे हमारी प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन बढ़ने लगी। जब हमारी फूड प्रोडक्शन बढ़ने लगी तो उसके बाद आपको पता होगा राशन की दुकानें खुली तो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बढ़ा। राशन की दुकानों से सब्सिडाइज्ड अनाज लोगों के घर तक पहुंचने लगा। तो काफी 5 साल ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमने ये इंश्योर तो कर लिया कि हमारे पास खाने को अनाज होना चाहिए, लोगों के घर तक अनाज पहुंचना चाहिए ताकि देश में फूड सिक्योरिटी की स्थिति आए। लेकिन उस चक्कर में हम ये भूल गए कि सिर्फ अनाज खा के शरीर की सारी पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। We cannot fulfill all our nutritional needs with only cereals. We also need fruits, we need vegetables, we need pulses, we need milk products. और इसलिए देश को जरूरत थी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में रेनबो रेवोल्यूशन की। एंड उससे हमें और भी चीजें बहुत आसानी से उपलब्ध होने लगी। आज भी बनाना, पपाया, मैंगो, इनका बहुत बड़ा प्रोड्यूसर विश्व में नंबर 1 स्तर पर भारत होता है। सो अब हमारे पास जो चैलेंज है वो ये है कि हम लोगों में चेतना जगाएं डाइटरी डाइवर्सिटी को लेके कि सिर्फ पेट भरना काफी नहीं है, आपकी डाइट में वैरायटी होनी चाहिए। अगर आपको सीरियल खाने हैं तो आपको 1 कटोरी दाल भी खाना है, 1 कटोरी आपके पास दूध या दूध से बना पदार्थ भी आपके खान पान का हिस्सा होने चाहिए। इसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से तो आपकी आधी थाली भरनी चाहिए। तो सीजनल वेजिटेबल्स खाना, सस्ते फल खाना जो आसानी से उपलब्ध हैं, इन चीजों पे अभी भी हमारा ध्यान नहीं है। एंड व्हेन वी टॉक ऑफ जीरियाट्रिक न्यूट्रिशन, डाइटरी डाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है टू ब्रिंग इन क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ।
और इसी को ध्यान में रखते हुए आगे का प्रेजेंटेशन है। और हम सबको ये याद रखना चाहिए कि हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 वर्ष हो गए हमारी आज़ादी को, बहुत हमने प्रोग्रेस करी है, लेकिन अभी हमें शांत नहीं बैठना है। देयर इज मच मोर टू डू, देयर इज मच मोर टू अकम्प्लिश। और आप सबके ऊपर अब ये जिम्मेदारी आती है, बिकॉज यू आर द यंग वंस। तो आज जो सब मैं बातें करने जा रही हूँ, उन बातों का अमल कौन करेगा, उनको प्रैक्टिस में कौन लाएगा, ओल्डर पीपल की लाइफ को कौन बेहतर कर पाएगा, वो सभी लोग आप होंगे। सो विद दिस अब मैं एक्चुअली अपनी बात करना शुरू करती हूँ। हमने ये सारी बात करी कि हमें अपने देश में एग्रीकल्चर और फूड से संबंधित क्या क्या चीजें करनी हैं। और अब हम एग्जैक्टली जेरियाट्रिक न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले ये समझेंगे कि हमें कुछ और टर्म्स की जानकारी होना भी जरूरी है जब हम जेरियाट्रिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। और उसमें जो सबसे पहली टर्म जिसकी हम बात करने शुरू करेंगे वो है एजिंग। एजिंग ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के लिए नई टर्म होगी, आप सभी ने सुनी होगी। अभी ये किसी ने कहा था कि अगर हम यंग दिखते हैं बड़ी एज में भी तो वो एक कॉम्प्लीमेंट माना जाता है, लेकिन अगर हम छोटी एज में एजेड दिखते हैं तो वो तो कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो होना भी नहीं चाहिए। सो एजेड, एजिंग, ये टर्म्स हम हमेशा यूज करते हैं बातचीत में। कोई न्यूट्रिशन का स्टूडेंट है या नहीं है, पर ये आम बोलचाल की भाषा का शब्द है। क्या आप में से कोई स्टूडेंट मेरे इस प्रश्न का जवाब दे सकता है दैट व्हेन डज एजिंग बिगिन, हमारी एजिंग कब शुरू होती है? आई वुड रियली बी हैप्पी अगर आप अपना माइक ऑन करके इस बात का जवाब दें। मैम एजिंग 50 के बाद शुरू होती है, लेकिन अभी इंडिया में इस तरह का माहौल एटमॉस्फेयर है कि हमारा 30 के बाद ही एजिंग स्टार्ट हो जाती है। So thank you so much for answering. I truly appreciate the interaction that takes place during any presentation. लेकिन इसी वजह से मैंने सोचा कि मुझे सबसे पहले मैं जीरियाट्रिक न्यूट्रिशन की बात करूं, उससे पहले मुझे ये बता देना जरूरी है that what is aging. तो डेफिनेशन तो आपके सामने है, स्लाइड्स चल रही हैं, आप इन्हें पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो जो बॉडी के अंदर किसी भी जो जीवित प्राणी है उसकी बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस आते हैं विद एज, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो बदलाव आते जाते हैं, उस प्रोसेस को हम एजिंग कहते हैं। बट with respect to the question I asked, when does the aging begin? Aging शुरू हो जाती है with conception। जैसे ही एक बच्चा कंसीव होता है उसी के साथ एजिंग शुरू हो जाती है। इनिशियली बॉडी एनाबॉलिक फेज की है, नई नई चीजें बन रही हैं, पर बन रही हैं तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस तो हो रहे हैं। दिमाग 1 साल के बच्चे का और 5 साल के बच्चे का अलग होता है, 5 साल के बच्चे का और 15 साल के बच्चे का अलग होता है, और 15 साल के बच्चे का और 25 इयर्स ओल्ड अडल्ट का अलग तरीके से काम करता है। सो यू सी द चेंजेस आर अकरिंग, ये फंक्शनल भी है और ये स्ट्रक्चरल भी है। इनिशियली पॉजिटिव एनाबॉलिक, लेटर ऑन कैटाबॉलिक, लेकिन चेंजेस लगातार चलते हैं। सो जैसे ही कोई प्राणी कंसीव होता है, जैसे ही लाइफ बनती है, वैसे ही एजिंग शुरू हो जाती है। सो विद रिस्पेक्ट टू साइंस, एजिंग बिगिंस विद कंसेप्शन। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो 2 साल में शुरू होगी, 12 साल में शुरू होगी, 25 साल में शुरू होगी या 7 साल में शुरू होगी। वो तो जब हम पैदा हुए उससे बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। एंड इट हैपेंस विद एवरीबॉडी। दूसरा टर्म जो आप सबको पता होना चाहिए और समझ आना चाहिए, व्हाट इज जीरियाट्रिक्स? सो जीरियाट्रिक्स इज व्हाट? इट इज मेडिकल केयर ऑफ पीपल हु आर ओल्ड। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि
ओल्ड कब होते हैं हम? अगेन वही है कि रफली हम डिफाइन करते हैं, लीगली कई जगह पे डिफाइंड होता है कि हम लोगों को हमारा जो संविधान होता है वो कहने लग जाता है कि 60 पे लोग ओल्ड हो गए हैं, उन्हें रिटायर कर दीजिए, या 65 पे लोग ओल्ड हो गए हैं, उन्हें रिटायर कर दीजिए। कई जगह ओल्ड शब्द यूज किया जाता है, कई जगह एल्डरली शब्द यूज किया जाता है, बट वॉट एवर इट इज, जो भी है उस देश का संविधान है वहाँ एक कट ऑफ होगा और वहाँ पे कि लोगों को एक एज पे ओल्डर क्लासिफाई किया जाएगा। सो उन लोगों की जो मेडिकल केयर होती है उस फील्ड को हम कहते हैं जीरियाट्रिक्स। आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर। इसके बाद में हम बात करेंगे जेरोंटोलॉजी की बात करेंगे। जेरोंटोलॉजी जो शब्द है, जहां भी जिस भी शब्द या जिस भी टर्म के पीछे लॉजी वर्ड आता है, लॉजी इज अ वर्ड दैट इज फ्रॉम लोगोस, एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ। तो जेरोंटोलॉजी नाम से आप समझेंगे, टर्म से आप समझेंगे, स्टडी ऑफ है, लेकिन किसकी स्टडी है? इट इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग एजिंग, या सीनियर सिटीजन्स, ओल्डर पर्सन्स की जो स्टडी होती है उसे जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। तो जीरियाट्रिक्स क्या है? मेडिकल केयर ऑफ द एल्डरली, जेरेंटोलॉजी स्टडी ऑफ द एल्डरली। 3 टर्म्स की बात हो गई, एजिंग, जीरियाट्रिक्स एंड जेरेंटोलॉजी। अगर हम टाइप्स ऑफ एजिंग की बात करें तो हम उसे 2 कैटेगरीज में डाल सकते हैं, वन इज क्रोनोलॉजिकल एजिंग एंड अनदर वन इज फिजियोलॉजिकल एजिंग। नाउ द टर्म क्रोनोलॉजिकल एजिंग, क्रोनोलॉजी, ये नंबर्स की बात होती है। तो जब कोई व्यक्ति कहता है मैं 20 साल का हूँ या 50 साल का हूँ या 60 साल का हूँ, तो हम कह देते हैं अब आप 60 साल के हो गए, आप जॉब से रिटायर हो जाएंगे। और क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अब आप ओल्ड हो गए हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज क्रोनोलॉजिकल एजिंग, जो हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, what we as nutritionists are interested in is physiological aging. फिजियोलॉजिकल एजिंग का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी के जो टिश्यूज हैं, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, उनकी फंक्शनिंग कितनी एफिशिएंट है या कितनी खराब है। देयर कैन बी पीपल 25 years of age whose liver is not functioning well, whose kidney is not functioning well, whose heart is not functioning well, और उनके लिवर की स्थिति एक नॉर्मल 70 साल के व्यक्ति के लिवर की स्थिति हो सकती है। And on the other hand, उसके लिवर की एफिशिएंसी आपने डिस्कस किया था अभी। एजिंग बताई थी, 2 और टर्म्स भी बताई थी मैंने। किसी को ध्यान है कौन सी 2 और टर्म्स बताई थी? जेरोटोनोमी, जेरेंटोलॉजी, वेरी गुड। और एक और बताई थी, जेरिटियोरेसिस करके है। जीरियाट्रिक्स, है ना? तो पहली बताई थी एजिंग, दूसरी बताई थी जीरियाट्रिक्स, उसके बाद में जेरेंटोलॉजी भी बताई थी। जेरेंटोलॉजी के बाद में मैं आपसे अभी बात कर रही थी, जब हम
खत्म हो गया था हमारा सेशन टाइप्स ऑफ एजिंग। मैं आपको बता रही थी कि एजिंग या तो क्रोनोलॉजिकल हो सकती है, नंबरों में हम व्यक्त कर सकते हैं कि भाई 90 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, 70 साल के हो गए। लेकिन हम लोग जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं ना, वो सालों में ऐसे बिलीव नहीं करते। हम ये देखते हैं कि बॉडी की फंक्शनिंग कैपेसिटी अच्छी है या नहीं है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि 80 साल के व्यक्ति का लिवर उतना ही अच्छा काम कर सकता है जितना कि 40 साल के व्यक्ति का करता है। और ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों में फिजियोलॉजिकल एजिंग जल्दी हो जाती है, जैसे जो शराब ज्यादा पिएंगे उनका लिवर इतना खराब काम करेगा जैसे 80 साल के या 90 साल के व्यक्ति का करेगा। तो हम जो फोकस करते हैं जब हम जीरियाट्रिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो ऑल आवर फोकस इज ऑन व्हाट, कि हम फिजियोलॉजिकल एजिंग की गति को थोड़ा सा मिनिमाइज कर दें, कम कर दें, धीमा कर दें, ताकि लोग लंबे समय तक युवा रहें। तो फिजियोलॉजिकल, क्योंकि नंबर्स पे तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते, हर साल बर्थडे आएगा, हर साल 1 साल उम्र बढ़ जाएगी, लेकिन हमारी बॉडी के फंक्शंस अच्छे चलते रहें, वो अच्छा होगा अगर हमारा खान पान अच्छा होगा। और इसलिए सिर्फ 60 साल के होने के बाद या 65 साल के होने के बाद हमें न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इट इज नाउ, पहले से हमें तैयारी करनी होती है कि हमारी बॉडी की एफिशिएंसी अच्छी रहे, एंड देयरफॉर हमारी एजिंग जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे आगे बढ़े, डिले होता रहे। अगर आप लोगों के बीच में भी कोई प्रश्न हो तो आप मुझे बोल के पूछ सकते हैं। ये डेमोग्राफिक ट्रेंड्स हैं, और इस ग्राफ में आप देख सकते हैं जो डार्क ब्लू कलर का हिस्सा है सबसे टॉप पे हर बार में, वो है कि हमारे देश में बुजुर्ग लोगों की जनसंख्या कितनी है। तो आप देखोगे कि देश की पूरी जनसंख्या में बुजुर्ग लोगों की जनसंख्या का हिस्सा बहुत कम था 2010 में, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोजेक्शन जब आगे बढ़ता है, और अगर हम 2050 में आने वाली स्थिति का अनुमान लगाते हैं, तो हमारे देश में 60 साल से बड़े व्यक्तियों की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और ये वो समय होगा जब आप लोग अपने प्रोफेशन की पीक पर होंगे। यस मैम। तो इसलिए आज आपको ये समझ लेना बहुत जरूरी होता है कि बड़े लोग देश पर बोझ ना बने, देश के प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट कर सकें, उसके लिए आपके ऊपर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि उन्हें आप स्वस्थ बनाए रखें। और ये जेरियाट्रिक न्यूट्रिशन जानना, समझना, पढ़ना, यूज करना आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो अब एक्चुअली हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जेरियाट्रिक न्यूट्रिशन। और अगर सीधे सीधे सिंपल शब्दों में मैं आपको कहूँ तो जेरियाट्रिक न्यूट्रिशन में हम क्या करते हैं, हम न्यूट्रिशन के जो सिंपल प्रिंसिपल्स होते हैं उनको ही अप्लाई करते हैं, सो दैट हम लोगों में एजिंग के प्रोसेस को डिले कर सकें, उनमें समय के साथ, उम्र के साथ आने वाली बीमारियां का होना कम कर सकें, हम उनको शारीरिक रूप से स्वस्थ रख सकें, हम उनको संवेगात्मक रूप से स्वस्थ रख सकें, हम उनको मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकें, और बुढ़ापे के साथ जितने भी डीजेनरेटिव चेंजेस आ सकते हैं उनको मिनिमाइज करते चलें। जेरियाट्रिक न्यूट्रिशन का यही काम होता है। सो वेरी सिंपली स्पीकिंग, इट इज मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी फॉर द एल्डरली पीपल। अच्छा होगा आप वैसे स्लाइड्स लंबे समय तक दिखाई दे रही हैं, मैं जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ रही हूँ, तो आप इन चीजों को नोट भी करते चलेंगे तो शायद आपके कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे। सो जब हम कहते हैं कि ओल्डर पीपल का न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, तो अगर वाकई उनका न्यूट्रिशन अच्छा है उससे क्या फायदा होता है, क्या बेनिफिट होता है। एक तो बढ़ती उम्र में कुपोषण नहीं होता है, बहुत सारे शारीरिक फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से चल सकते हैं,
आपने देखे, कई ऐसे देखे होंगे, 75 साल के 2 व्यक्ति आप अपने खुद के जीवन में इमेजिन कर सकते हैं, एक जो कंप्लीटली बेड रिडन है और एक जो अपना सारा काम खुद कर रहे हैं, बाजार भी जा रहे हैं, फल फ्रूट भी ला रहे हैं। सो दैट मीन्स ओवरऑल लाइफस्टाइल अच्छी रही है, न्यूट्रिशन अच्छा रहा है, तो फिजिकल फंक्शन अच्छा बना रहता है। किसी भी तरह की क्रॉनिक डिजीज जैसे कि हाइपरटेंशन, कैंसर, डायबिटीज, इनके होने की संभावना बहुत कम हो जाती है अगर हम पहले से ही प्री एजिंग न्यूट्रिशन पे फोकस करके चलते हैं, यानी कि जेरियाट्रिक न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं। मेंटल हेल्थ अच्छी बनी रहती है ऐसे लोगों की, और किसी भी तरह की डिसेबिलिटी की वो पलंग पे पड़ जाएं, दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाएं, उस तरह की अवस्था आने में बहुत समय लग जाता है, और कभी कभी ऐसी अवस्था एंड तक भी नहीं आती है, पूरी लाइफ उनकी हंसते खेलते गुजरती है। So now we will talk about nutritional requirements of the elderly. और जब भी हम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि समय के साथ साथ, उम्र के साथ साथ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स में चेंज आता है। मुझे हाँ या ना में अपना माइक ऑन करके जवाब दीजिए, क्या आपने कोई RDA टेबल नाम की चीज देखी है? RDA टेबल, रिकमेंडेड Yes, ma'am. डाइटरी पढ़ी है ना? तो Yes, आपको ma'am. ये आइडिया होगा सभी को कि उसमें एज ग्रुप वाइज चीजें लिखी रहती हैं, Yes, जैसे ma'am. कि 0 to 6 मंथ्स का ये RDA है, फिर अलग अलग एज ग्रुप 7 to 9 years, फिर 10 to 12 years, 12 to 14 years, ये सारी चीजें होता है ना? Yes, ma'am. इसी तरह से जैसे कि हर एज ग्रुप में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स चेंज होते रहते हैं, वैसे ही बुजुर्गों के लिए, उम्र दराज व्यक्तियों के लिए भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स में चेंज आता रहता है। सो जब हम जेरियाट्रिक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं तो एक्चुअली हम ये भी देखते हैं कि उम्र के साथ कौन से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स में क्या बदलाव आता है, और न्यूट्रिशन का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है जेरियाट्रिक पॉपुलेशन में, यानी कि बुजुर्गों की पॉपुलेशन के अंदर। क्यों बड़ा रोल होता है? एक तो इससे हम हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, बीमारियों की रिस्क को कम कर सकते हैं, और उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, जब भी हम बात करते हैं RDAs की, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स की, तो सबसे पहले जो बात होती है हमेशा हम किसकी करते हैं? हम एनर्जी की बात करते हैं, राइट? ठीक कह रही हूँ मैं? कैलकुलेशन भी जब हम करते हैं तो एनर्जी की ही सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं। Yes, ma'am. तो यहाँ पे स्लाइड्स में आपको मेन और विमेन ही अभी मैंने लिखा है, उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट भी दिखाई दे रहा है। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि ये नॉर्मल अडल्ट लोगों का रिक्वायरमेंट है या कोई और रिक्वायरमेंट है, कोई और RDA है? मैम नॉर्मल नहीं, लाइक नॉन वर्किंग का है मे बी। मैम ये जो, नॉर्मल, हाँ बोलिए प्लीज। मैम नॉर्मल का है, सेडेंटरी वर्कर का है। नहीं, देखिए मैम आपको नॉन ध्यान, वर्किंग लेडी का है। ये जो मैम ये रिक्वायरमेंट्स हैं, मैम ये जेरियाट्रिक एज ग्रुप का 1600 कैलोरी, वुमेन का जेरियाट्रिक का है ना। ओके, चलो वेरी वेल, मतलब ये सबसे अच्छी बात है कि आप सब में कॉन्फिडेंस है कि आप मेरे क्वेश्चंस को आंसर करने को अटेम्प्ट कर रहे हैं। आई वेरी मच अप्रिशिएट दैट। अब आपको ये बात समझनी होगी कि RDAs हमारे थोड़े चेंज हो गए हैं, 2020 में नए RDAs आए हैं, यस तो मैम। वो Yes. एक नई टेबल आप सबको पढ़नी होगी, समझनी होगी। एनर्जी ma'am. के जो RDA अभी आपको दिख रहे हैं स्लाइड पे, ये एक्चुअली अप्लाई होते हैं टू सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि उस RDA की बुक के अंदर एल्डरली एज ग्रुप का RDA उसी टेबल में नहीं है जिसमें बच्चों और अडल्ट्स का है। तो आपको ये समझ में आएगा कि जैसे जैसे एजिंग होती है, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, 40 से 50 साल के होते हैं, 50 से 60 साल के होते हैं, वैसे वैसे हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होता है, BMR कम होता है, हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हर दशक में 3% कम होती चली जाती है।
और ऐसा इसलिए हो रहा है कि बीएमआर कम हो रहा है, हमारी बॉडी में से लीन बॉडी मास मतलब मसल मास जो है वो कम हो रहा है, हमारी बॉडी में फैट टिश्यू बढ़ता है उम्र के साथ, और फैट टिश्यू ज्यादा एनर्जी का खर्चा नहीं करता, जो स्केलेटल मसल मास होता है वो ज्यादा एनर्जी का खर्चा करता है। तो धीरे धीरे हर दशक में एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती चली जाती है, इसलिए जनरली हम एल्डरली को अडल्ट्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम एनर्जी की डाइट देते हैं। एट द मोस्ट 2000 किलो कैलोरी पर डे फॉर एल्डरली मेन एंड अराउंड 1600 किलो कैलोरी पर डे फॉर एल्डरली विमेन। लेकिन साथ में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम उनकी डाइट को अननेसेसरीली भी कम एनर्जी की ना कर दें। मतलब अगर आप इसे 1500 किलो कैलोरी से कम की तरफ लेके चले जाएंगे, आमतौर पे आप अगर उन्हें 1500 किलो कैलोरी से कम की डाइट देंगे तो ऐसे के अंदर उनमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो लो कैलोरी तो है कंपेयर्ड टू अडल्ट्स, बट 1500 से तो ऊपर ही रखेंगे तभी ठीक रहेगा। अब हमने एनर्जी की बात कर ली। What is the next nutrient that usually follows in the importance line? हम किसकी बात करते हैं एनर्जी के बाद? प्रोटीन की। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन की। और एनर्जी में टोटल एनर्जी हम जितनी भी दे रहे हैं, मान लीजिए 2000 किलो कैलोरी एनर्जी हम दे रहे हैं, तो 15% of 2000 can come from protein on the lower end and 25% can come from protein on the higher end. तो आप में से कौन मुझे बताएगा कि 2000 का 15% कितना होता है? आवाज नहीं आई मुझे। मैम 250 नहीं 300 सॉरी। गुड। और अगर हम 500 पे जाते हैं तो वो 25% हो जाता है, है ना? तो अगर 2000 किलो कैलोरी की डाइट है तो उसमें से 300 किलो कैलोरी जो है वो प्रोटीन से आ सकते हैं, 300 किलो कैलोरी से 500 किलो कैलोरी तक। और इसी तरह से एक क्वेश्चन था हाँ मैम, बोलिए लोअर मींस कम से कम और अपर एंड मींस ज्यादा से ज्यादा? हाँ बिल्कुल ओके, सही। थैंक यू मैम। ओके। इसी तरह से एनर्जी में कार्बोहाइड्रेट हम 45 to 65 का कंट्रीब्यूशन लेते हैं और फैट 20% ऑफ द टोटल एनर्जी की हम बात करते हैं। सो हायर लिमिट बीइंग 35%। तो अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से हम इनमें से लोअर या अपर लिमिट ले लेते हैं कैलकुलेशन करते समय। सो मैं आपको बात कर रही थी प्रोटीन की, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बॉडी के अंदर से स्केलेटल मास की, स्केलेटल मसल की कमी होती है। और स्केलेटल मसल की कमी होती है तो हमारे शरीर में वो प्रोटीन्स जैसे कि एंटीबॉडीज जो हमारी रक्षा करने वाले प्रोटीन हैं, उन प्रोटीन्स को बनाने के लिए भी प्रोटीन की कमी हो सकती है अगर हम डाइट के थ्रू ठीक मात्रा के अंदर प्रोटीन्स नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम ये इंश्योर करें कि एल्डरली लोगों को, वृद्ध जनों को हम नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा प्रोटीन दें। तो नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा प्रोटीन दें। हम नॉर्मली ये कहते थे कि हम 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन को कैलकुलेट कर लेते हैं। आजकल हम 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट की बात कर रहे हैं। तो आप मोटा मोटा मानेंगे तो एल्डरली लोगों के लिए जब हम डाइट प्लान करते हैं तो हमें करीब करीब 1 to 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देना चाहिए। तो यानी कि अगर 50 किलो किसी एल्डरली व्यक्ति का वजन है तो हमें उसे 50 से 55 ग्राम प्रोटीन दिया जा सकता है इन अ डे।
तो मैंने एनर्जी की बात करी और मैंने प्रोटीन की बात करी। प्रोटीन के लिए मैंने आपको बताया भी कि प्रोटीन को बढ़ाकर देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उस समय हमें सुरक्षात्मक प्रोटीन बनने के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो हमारे ऑलरेडी इकट्ठे हुए प्रोटीन से नहीं मिल पाते हैं। इसके अलावा बुजुर्ग लोगों में सार्कोपीनिया नाम की कंडीशन भी हो जाती है। सार्कोपीनिया अगेन मसल लॉस के लिए एक वर्ड है जो हम उस बुजुर्गों में काम में लेते हैं। तो सार्कोपीनिया से अगर बचाना है तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा प्रोटीन ज्यादा देना पड़ता है। अब एक और चीज आपने सुनी, प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। क्या कोई मुझे प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन इस टर्म का मतलब बता सकता है अगर आता हो तो? एनीबॉडी? प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। मैं प्रोटीन एनर्जी गिविंग का भी काम करता है। एग्जैक्टली हमारी बॉडी में एनर्जी अगर कम है तो प्रोटीन पहले एनर्जी देगा, उसके बाद अपना प्राइमरी काम जो है वो करेगा। दैट इज प्राइमरी काम ऑफ बॉडी बिल्डिंग करेगा। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम इतने कार्बोहाइड्रेट तो दे दें कि एनर्जी की कमी ना हो और प्रोटीन अपना बॉडी बिल्डिंग का काम ठीक से कर सके। सो तीसरी बात अब मैं जो करने जा रही हूँ वो कार्बोहाइड्रेट की करने जा रही हूँ। इसका अमाउंट इतना तो होना ही चाहिए कि प्रोटीन कैन बी स्पेयर्ड फॉर इट्स बॉडी बिल्डिंग फंक्शन। तो हमें ये ध्यान रखना होता है। तो मीठा, बिल्कुल सीधा सीधा शुगर डला हुआ खाना, बहुत ज्यादा खाना एट एन एज आफ्टर 50 और 60 इयर्स कम कर देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे एज होता है वैसे वैसे टेस्ट की सेंसेशन कम होती है, तो लोग ज्यादा नमक डालने लगते हैं खाने में, ज्यादा चीनी डालने लगते हैं, जिससे कि उनकी तबीयत बिगड़ सकती है, कुछ बीमारियां हो सकती हैं। और खास तौर पे जो सबसे पहले और बहुत आसानी से अफेक्ट होता है वो होता है ओरोडेंटल हेल्थ। आपका दांतों का जो स्थिति है वो खराब होती है, डिके होता है, जीरोस्टोमिया होता है, मुंह की हेल्थ खराब होने लगती है। तो शुगर का इंटेक हमें कम करना चाहिए। एंड ऑन द अदर हैंड हमें कार्बोहाइड्रेट में कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स को ज्यादा इंक्लूड करना चाहिए इन द डाइट ऑफ एल्डरली पीपल। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कम रखने हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा रखने हैं। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इज डाइटरी फाइबर। क्या कोई मुझे बता सकता है डाइटरी फाइबर के फूड सोर्सेज क्या होते हैं? मैम अलसी के बीज, मैम खीरा, मैम भिंडी, मैम फ्लैक्स कैबेज सीड, जो होता है, मटर, फ्रूट्स एंड भिंडी, वेजिटेबल्स में होते हैं, छिलके वाली दालों में होते हैं, जो मोटा पिसा हुआ अनाज होता है उसमें होते मैम हैं, अनाज मिलेट्स गेहूं में में। होते हैं। हाँ, तो मैदा में नहीं होगा, लेकिन घर में नो मैम। चोकर वाला आटा जो पीसा जाता है उसमें फाइबर होगा। तो यस मैम। ये देखना चाहिए कि हमें फाइबर वाला कार्बोहाइड्रेट ज्यादा देना चाहिए। इससे बहुत सारी बीमारियों से भी बचाव होता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे गट हेल्थ डिटीरियोरेट होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम डिटीरियोरेट होता है, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी बहुत होती है। उससे भी बचने के लिए हाई फाइबर डाइट चाहिए होती है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देने से आप इन परेशानियों को कम कर सकते हैं इन द एल्डरली। और कॉन्स्टिपेशन इन एल्डरली, फाइबर फूड्स इन एल्डरली, इस पे रिसर्च की गुंजाइश भी बहुत होती है। इट कैन बी अ वेरी गुड रिसर्च टॉपिक। फिर हम आते हैं फैट्स पर। फैट्स में मैंने आपको बताया कि 20% to 35% ऑफ द टोटल एनर्जी कैन बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय फैट। विजिबल फैट का अमाउंट हमें 20 ग्राम से ज्यादा दिन भर में नहीं यूज करना चाहिए। मतलब जो हम दाल में, सब्जी बनाने में, रोटी के ऊपर लगाने में, चावल छौंकने में जो घी या तेल इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें लिमिट करके रखना चाहिए। 20 ग्राम से ज्यादा वो दिन भर में नहीं जाना चाहिए।
While choosing the right kind of fats and oils for the elderly, हमें कोशिश करनी चाहिए कि घी जो है, मैं कह रही हूँ ना 20 ग्राम से ज्यादा नहीं हमें विजिबल ऑयल यूज, घी की मात्रा 8 ग्राम तक हो सकती है, उससे ज्यादा ना हो तो अच्छा है ना। बचा हुआ 10, 11, 12 ग्राम जो है वो अच्छा होगा हम मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स से प्राप्त करें। तो घी तो एग्जाम्पल हो गया सैचुरेटेड फैट का। सैचुरेटेड फैट 8 ग्राम से ज्यादा नहीं। अनसैचुरेटेड में हम मूफा जैसे कि ओलिव ऑयल, कैनोला ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, सैफलावर ऑयल, जिंजली सीड ऑयल, ये सारी चीजें जो हैं वो पूफा के सोर्सेस होते हैं। जब हम पूफा बेस्ड ऑयल का यूज करते हैं तो हमें N3 फैटी एसिड्स और N6 फैटी एसिड्स मिलते हैं, जिनमें से कुछ इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, यानी कि वो फैटी एसिड्स होते हैं जो बॉडी अपने अंदर नहीं बना सकती है, और उनकी कमी से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स और दूसरी अन्य प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये ध्यान रखना है कि एक्सेस फैट अवॉइड करना है। एक्सेस फैट के अंदर भी विजिबल फैट रेस्ट्रिक्ट करके रखना है। सैचुरेटेड फैट देना है, मना नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि घी बिल्कुल बंद है, लेकिन एक्सेस में नहीं देना है। 8 ग्राम बहुत है दिन भर के अंदर, क्योंकि अगर आप इन रेस्ट्रिक्शंस को नहीं मानेंगे तो ऐसे लोगों के अंदर बहुत सारी लिपिड प्रोफाइल जो है उसके ऑल्टरेशंस देखे जाएंगे। साथ साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो 300 मिलीग्राम से ज्यादा पर डे किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए। अब जैसे ही हम एनर्जी कम करते हैं, एज के साथ खान पान कम होता है, एनोरेक्सिया होता है, एपेटाइट कम होता है, डाइट कम होने लग जाती है, तो एक चिंता जो हमें सताती है विद रिस्पेक्ट टू सीनियर सिटीजन्स, दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। कहीं उन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट मैलन्यूट्रिशन तो नहीं हो जाएगा, और उससे बचाने के लिए उन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच फूड्स देने होते हैं। तो मेरा अब एक बार फिर से आपके पास क्वेश्चन आता है, व्हाट आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? मैम हमारे जो विटामिन मिनरल्स होते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। ओके, वेरी गुड। तो जिन मैम न्यूट्रिएंट्स, हाँ बोलिए बोलिए। मैम विटामिन्स भी आएगा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में? यस यस यस। तो जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता हमें सूक्ष्म मात्रा में होती है उसे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ओके, सो वो होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। उनका भी हमें जीरियाट्रिक डाइट के अंदर बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अब ये मीटिंग जो है 10 मिनट्स में एंड हो जाएगी, तो आप लोग रीजॉइन करिएगा। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके अभी मैम। तो कंटिन्यू रखना बच्चों। हाँ, अभी करना है कंटिन्यू, जब ये एंड हाँ। हो जाएगी ना तब तब अपने आप आपको पता चल जाएगा। ओके ओके मैम। 9 मिनट बाद एंड होगी, ठीक है? तो नहीं आ रहा है, चलो। जैसे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज होने लग जाती हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज एल्डरली लोगों को क्यों होंगी? या तो वो ठीक मात्रा में खाना नहीं खा रहे हैं, या फिर जो खा रहे हैं वो बॉडी में ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। एज की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। डाइजेशन अच्छा हो उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, वो भी कम हो जाती है विद एज। मोटे लोगों में आमतौर पे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज देखते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के पूरे प्रोसेस में फ्रॉम इनटेक टू एसिमिलेशन किडनी फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जिनका किडनी ठीक से काम नहीं करता उनको भी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होती हैं। जिनको क्रॉनिक डिजीजेस हैं उनको भी डेफिशिएंसीज होती हैं।
जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हम डॉक्टर्स अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे बुजुर्ग लोग पॉलीफार्मेसी में एंगेज होते हैं। पॉलीफार्मेसी इस शब्द का मतलब होता है कई सारी दवाइयाँ, 8, 10, 12, 13, 15, 20 दवाइयाँ एक दिन में लेना। दवाइयाँ जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स के साथ इंटरैक्ट करती हैं और उनको ठीक से काम नहीं करने देती हैं, तो उसकी वजह से भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है। और कई बार जब सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है और डॉक्टर्स न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रेस्क्राइब करते हैं या डाइटिशियंस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रेस्क्राइब करती हैं, तो बुजुर्ग लोग उन्हें खाते नहीं हैं, तो उससे भी फिर वो डेफिशिएंसीज बनी रहती हैं। बहुत कॉमनली ओवर्ट मिनरल डेफिशिएंसीज जिनके साइंस एंड सिम्टम्स क्लियरली दिखते हैं वो तो बहुत रेयर ही होती हैं एल्डरली लोगों के अंदर, पर सब क्लिनिकल डेफिशिएंसीज यानी कि ब्लड में लेवल लो हो जाता है पर क्लियर कट सिम्टम्स नहीं आते हैं, इस तरह की डेफिशिएंसीज विद एज होने लग जाती हैं। तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं एक मिनरल की जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग द बोन हेल्थ, और उसके सोर्सेज की पिक्चर्स यहाँ पे आपको दिख रही हैं। कौन बताएगा मैं किस मिनरल की बात कर रही हूँ? मैम कैल्शियम। बिल्कुल एग्जैक्टली, ताली बजाने लायक आंसर दिया, बहुत ही प्रॉम्प्ट आंसर था। सो वी आर टॉकिंग अबाउट calcium. Now calcium, you know, it is related to bone health. Calcium is also related to metabolism of vitamin D. और जैसे जैसे एजिंग होती है आपको पता है कि फ्रैक्चर्स बहुत होने लग जाते हैं, बोन्स की पोरोसिटी कम हो जाती है, उसके लिए ज़रूरत होती है कि बूढ़े होने से पहले ही अच्छी मात्रा में कैल्शियम खाया जाए, बाद में तो खाया ही जाए, ताकि जो लंबर रीजन की बोन्स हैं, हिप फ्रैक्चर्स हैं, वो सब होने की संभावना घट जाएंगी और बोन्स जो हैं वो अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग रहेंगी। छोटी मोटी फॉल होने पे, छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट होने पे उनमें फ्रैक्चर्स नहीं होंगे। पर कैल्शियम के सही मेटाबॉलिज्म के लिए साथ साथ में बॉडी के अंदर विटामिन डी की मात्रा भी पूरी होनी चाहिए। ये दोनों अगर पूरे हैं, दोनों की अगर डेफिशिएंसी नहीं है, ओनली इन दैट केस फ्रैक्चर्स के रेट में हम एल्डरली में रिडक्शन ला सकते हैं। तो कैल्शियम अकेले अपने आप में कुछ नहीं कर पाएगा अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो। Next, we are talking about very important element, that is iron. आयरन के बारे में आप सभी जानते होंगे। आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? मैम एनीमिया। एनीमिया। लो हीमोग्लोबिन लेवल्स लीडिंग टू एनीमिया। और हमें आयरन का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है और उसके लिए आयरन रिच फूड्स खाने की ज़रूरत होती है। और एक बहुत अच्छा तरीका होता है अपनी डाइट में कंटामिनेंट आयरन बढ़ाने का, और वो तरीका होता है कि हम आयरन के बर्तनों में, लोहे की कढ़ाई में जो खाना बनाएं, सब्जी बनाएं, तो उसमें कढ़ाई का आयरन आ जाता है, जिससे कि टोटल आयरन की क्वांटिटी फूड में बढ़ जाती है, विच इज़ गुड। वो बॉडी थोड़ी मात्रा में एब्सॉर्ब भी करता है इस तरह का आयरन। तो ये चीजें हमें सभी के लिए ध्यान रखनी है, एल्डरली के लिए भी और एज ग्रुप्स के लिए। नाउ आयरन के रिक्वायरमेंट्स डिफर कर जाती हैं या वेरी कर जाती हैं इन केस ऑफ मेन एंड विमेन। विमेन में तो क्या होता है, आयरन रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एडोलेसेंस में, अडल्टहुड में हाई रहते हैं, but then before the onset of true gerontological changes or geriatric changes, उनका they undergo a process known as menopause, और वो process आते ही उनमें blood loss कम हो जाता है और इसलिए उनके आयरन के रिक्वायरमेंट्स में बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। इनफैक्ट उनके आयरन रिक्वायरमेंट्स कम ही हो जाते हैं। बट मेन में ऐसा कोई चेंज नहीं आता, तो जो अडल्टहुड के आयरन रिक्वायरमेंट्स हैं करीब करीब हम उतना ही आयरन अडल्ट मेन को दे सकते हैं।
आयरन में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एब्जॉर्प्शन। कई बार एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं होता है, उस समय में हमें थोड़ा सा आयरन बढ़ा के देना चाहिए। और आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है। अगर साथ में हम आयरन रिच फूड के साथ में विटामिन सी भी देते हैं तो एब्जॉर्प्शन आयरन का अच्छा हो जाता है। इसके बाद बताइए क्या दिखाई दे रहा है स्लाइड में? मैम फैट्स का है। फाइबर्स मैम, फाइबर्स फाइबर्स और फैट। फाइबर्स तो नहीं दिख रहे, खाने की चीज दिख रही है, उसका नाम बताइए। मैम काजू एंड पंपकिन सीड। बिल्कुल सही। कैश्यू नट्स दिख रहे हैं एक तरफ और एक बुक पंपकिन सीड्स दिख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है किस मिनरल की बात हो रही है? मैम काजू में कैल्शियम होता है और हाँ, पर फैट भी कैल्शियम होता की तो मैं कर चुकी। तो अब आपको क्या लगता है किसकी हो रही है? मैं फैट। फैट की बात भी हो चुकी, बात तो मिनरल्स की चल रही है। यस मैम कोशिश मिनरल्स। करो, तो कौन सा मिनरल? मैम फास्फोरस। ये बात हो रही है जिंक। और आपको जिंक। पता है कि जिंक की आजकल कितनी इम्पोर्टेंस है। गर्ल्स हमारा मीटिंग टाइम शायद खत्म हो रहा है अब, तो मैं जिंक की बात जो है जब दोबारा स्लाइड आपके साथ शेयर करूंगी तब कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि बीच में अगर टूटता है तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है? सो ज्वाइन थ्रू दिस लिंक। एक्सक्यूज मी, हम लोग इसी Yes, लिंक ma'am. से ज्वाइन करते हैं दोबारा, ठीक है? Okay, ma'am. ओके ओके मैम। सॉरी मैम, वेरी सॉरी। ये कौन बच्चा बोल रहा है बेटा? चुप कराओ उसको जरा। मैम यू मोनिका मैम काइंडली मेक मी द होस्ट। जस्ट अ मिनट। आप मुझे बुला रहे थे क्या? किसको होस्ट बनाना था मैम? मैम जबा कुसुम सिंह, द फर्स्ट नेम जबा कुसुम सिंह। ओके 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 ओके, डन। नो मैम इट इज नॉट डन येट। मैंने कर दिया आपको अच्छा होस्ट, अब ठीक, तो वो मुझे ओके नाउ इट इज हियर। Is the slide visible? Yes ma'am. Okay. Yes ma'am, it's visible. Yes ma'am. So आप सभी को पता है कि इम्यूनो कॉम्पिटेंस के लिए जिंक की बहुत जरूरत है। 2 साल वी हैव बीन स्ट्रगलिंग विद कोविड एंड नाउ एवरीबॉडी नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ जिंक। हालांकि मैं अभी भी सबको चेतावनी देना चाहूंगी, अननेसेसरीली अपनी मर्जी से जिंक के सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, कोई भी एज ग्रुप हो चाहे। But zinc is an important mineral when it comes to nutrition because T cell mediated events में उसका रोल होता है। और वैसे भी उम्र के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी कम होती है, तो अगर हम टी सेल्स बेस्ड इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं तो जिंक की बॉडी में अच्छी सप्लाई रहनी चाहिए। जैसे जैसे एनर्जी इनटेक कम होता है, टोटल खान पान कम होता है, वैसे वैसे जिंक डेफिशिएंट होती जाती है डाइट। तो विद रिस्पेक्ट टू द डाइट ऑफ द एल्डरली पीपल ये ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है कि
जिंक सही मात्रा में उनकी बॉडी में जाए. सो वी हैव टू नो व्हाट आर द गुड सोर्सेज ऑफ जिंक. मोस्टली होल सीरियल्स में और नट्स में जिंक अच्छी मात्रा में पाया जाता है. अभी मैं आपको और सोर्सेज भी दिखा दूंगी, और उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो वेरी करती है कि आपकी डाइट में कितना फाइबर है. ज्यादा फाइबर वाली डाइट में जिंक का एब्जॉर्प्शन कम होता है. ज्यादा फॉस्फेट्स वाली डाइट में जिंक का एब्जॉर्प्शन कम होता है. एंड देयरफॉर ऐसे लोगों की जिंक की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हाई होती हैं. जिंक रिच फूड्स का मैंने कहा था मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. छोले, जो काबुली चने जिन्हें कहते हैं, उनसे हमस जैसी एक रेसिपी बनती है. तो आप काबुली चने की जो भी रेसिपी बनाएंगे दैट विल बी गुड इन जिंक. जिंकोविट की मैंने बात कर ली. मन मर्जी से नहीं खानी चाहिए. इट कैन हैव इट्स ओन साइड इफेक्ट्स इफ टेकन इन एक्सेस. बिना किसी डॉक्टर की सलाह के ऐसे सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए. फिर बात करनी बहुत जरूरी हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल दैट इज सोडियम. और जिसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए दैट सॉल्ट के इफेक्ट्स खतरनाक हो सकते हैं अगर वो बहुत कम हो जाए तब भी, और अगर वो बहुत ज्यादा हो जाए तब भी. अगर एक्सेस है सॉल्ट का तो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लाइक हाइपरटेंशन, स्ट्रोक्स हो सकते हैं, हार्ट अटैक आ सकता है. और इंडिया में हम लोगों का स्वाद ऐसा बन चुका है कि हम ज्यादा नमक डाल के हर चीज खाते हैं. सब्जी बन के टेबल पे आ गई है और नमक ऊपर से डालते हैं. रॉन्ग प्रैक्टिस. दिन भर में हमारा सॉल्ट, मैं तो सोडियम की बात ही नहीं कर रही हूँ, हमारा सॉल्ट का इंटेक 6 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी एज ग्रुप में, और एल्डरली में तो खास तौर पे. और एक्चुअली अगर आप डेटा देखेंगे और काउंट करेंगे तो 15 से 20 ग्राम सॉल्ट हम रोज खा जाते हैं. भुजिया खाई, अचार खाया, पापड़ खाया, सब चीज सॉल्ट की होती है. सो वन हैज टू टेक केयर. और ये एक अच्छा रिसर्च का टॉपिक बन सकता है, व्हाट इज आवर एक्चुअल सॉल्ट इनटेक कंपेयर टू व्हाट इट शुड बी. अगर सॉल्ट हमें एल्डरली लोगों की डाइट के अंदर कंटेन करना है, कम करना है, तो एक तो कुकिंग में उसे कम डालना चाहिए. दूसरी बात, बहुत ज्यादा बाजार के जो पैकेज्ड फूड्स हैं वो नहीं खाने चाहिए. उनमें बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है. जितना हो सके जेरियाट्रिक लोगों के लिए जरूरी होता है कि वो घर में बना सिंपल खाना खाएं. उसमें अपने आप सॉल्ट ठीक ठीक मात्रा में ही जाएगा. अगर वो नट्स खा रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको पंपकिन सीड्स दिखाया, वो सॉल्टेड नहीं खाने चाहिए, नॉर्मल खाने चाहिए, अनसॉल्टेड. और उस तरह के फूड्स ही चूज करने चाहिए अपनी डेली डाइट में जो सॉल्ट की मात्रा में कम होते हैं. वेरी सिंपली, हमारे नए आरडीए के हिसाब से एल्डरली लोगों की कैल्शियम, आयरन और रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे दिखा दिए गए हैं. इसके हिसाब से उनको अपना कैल्शियम और आयरन इनटेक लेना चाहिए. जिंक की बात तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ. उसके बाद बात आती है विटामिन की. और विद रिस्पेक्ट टू विटामिन, जहाँ ब्यूटी की बात आई, एंटी एजिंग की बात आई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं विटामिन. विटामिन में हमें ध्यान रखना है विटामिन ए का. ये बहुत सारी विटामिन ए रिच फूड्स की पिक्चर भी यहाँ पे लगाई हुई है. कैरेट आपको पता ही है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली, मिल्क से बने पदार्थों में रेटिनॉल होता है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स और बीटा कैरोटीन होते हैं, जो एक अच्छे एंटीऑक्सीडेंट का तो काम करते ही करते हैं, पर साथ साथ के अंदर कैंसर से बचाने का काम करते हैं, सेल्स के सेल वॉल्स को अच्छा रखने का काम करते हैं, स्किन को अच्छा रखने का काम करते हैं. सो दीज आर फ्री रेडिकल डैमेज से बचाते हैं. इसलिए विटामिन ए अच्छी मात्रा में होना चाहिए. दूसरी बात, हमें क्यों विटामिन ए की मात्रा और बढ़ा देनी चाहिए, वो इसलिए भी क्योंकि अडल्ट या बच्चों की बॉडी में
बीटा कैरोटीन से रेटिनॉल यानी कि प्री फॉर्म्ड विटामिन ए का जो कन्वर्जन है वो बहुत अच्छा होता है, पर जैसे जैसे बॉडी एज करती है ये फंक्शन डिटीरियोरेट होता है। तो हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर जो बीटा कैरोटीन है वो इतनी अच्छी मात्रा में शरीर के अंदर जाके विटामिन ए में कन्वर्ट नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा हमें डाइट के अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बढ़ा देनी चाहिए। सीमा मैडम अपना हो गया ना सब? हो गया सब ना? चलो, इसके बाद में बात आती है सनशाइन विटामिन की, और आप सभी जानते हैं हम किसे सनशाइन विटामिन कहते हैं, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं, राइट, बिल्कुल सही। और कैल्शियम की जब मैंने बात करी तो मैंने विटामिन डी की भी बात करी थी। बोन हेल्थ अच्छी रखनी है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म अच्छा रखना है तो हमें विटामिन डी चाहिए होता है। और अगर ओल्डर लोगों में विटामिन डी मैलन्यूट्रिशन होता है तो उसकी वजह होती है तो वो सूरज की रोशनी में जितना एक्सपोजर उन्हें चाहिए होता है वो उतना एक्सपोजर नहीं लेते हैं। सॉरी मैम, आई एम इंटरप्टिंग यू। और ये सरोजा देवी प्लीज अपने आप को म्यूट करिए, आपकी आवाज बहुत आ रही है घर से। ओके मैम, कंटिन्यू। हाँ, हमारी स्किन के अंदर जो कन्वर्जन होना चाहिए सनराइज का सनशाइन से जो स्टेरॉल्स बनते हैं वो स्टेरॉल्स का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन भी एज के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और एक्चुअली विटामिन ए को एक्टिव फॉर्म में यानी विटामिन D3 में कन्वर्ट होने के लिए 2 हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन से गुजरना पड़ता है, दैट हैपेंस इन द किडनी। तो या तो अगर किडनी की बीमारी होती है या किडनी की फंक्शनल कैपेसिटी कम होती है तो ये हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस ठीक से नहीं होते हैं और विटामिन डी अपनी एक्टिव फॉर्म में आ ही नहीं पाता है ठीक प्रकार से। सो विद रिस्पेक्ट टू रिक्वायरमेंट्स यू कैन सी कि अगर 1200 मिलीग्राम कैल्शियम कोई व्यक्ति खाता है तो उसे अराउंड 20 मिलीग्राम माइक्रोग्राम विटामिन डी दे देना चाहिए इफ शी इज अ विमेन, एंड थोड़ा सा कम मेन को चाहिए होता है। ये पिक्चर मैंने आपको जिंक के समय दिखाई थी। अब मैं वापस से पूछती हूँ कि अब मैं विटामिन की बात कर रही हूँ और वापस इसी पिक्चर को यूज कर रही हूँ, कौन से विटामिन की बात कर सकती हूँ मैं? कि कौन सा विटामिन है इन दोनों चीजों में? विटामिन ई, बी से भी ज्यादा ई। और विटामिन ई भी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है जो कि फ्री रेडिकल डैमेज से बॉडी को बचाता है, कैंसर जैसी बीमारियों से बॉडी को बचाता है। वो भी एल्डरली की डाइट में हमें इंश्योर करना चाहिए कि अच्छी मात्रा में हो। ये बहुत ही जबरदस्त रूप से प्रोटेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट तो होता ही है, साथ में ये सेल वॉल की हेल्थ को भी बहुत अच्छा बनाए रखने के लिए जरूरी होता है, क्योंकि मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर की तरह ये सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के स्टेबलाइजर की तरह काम करता है और इसके बहुत सारे प्रोडक्टिव इफेक्ट्स एक बॉडी ह्यूमन बॉडी पर होते हैं। ये कई तरह की परेशानियों से बचाता है, जैसे कि आंखों में आप देखते हैं मोतियाबिंद बहुत एल्डरली को होता है, कैटरैक्ट से बचाने में, कैंसर से बचाने में, अल्जाइमर्स डिजीज आजकल बहुत कम हो गई है जिसमें कि बुजुर्ग लोग भूलने लग जाते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज उनकी कम हो जाती हैं, उसमें भी विटामिन ई बहुत हेल्प करता है और कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर से बचाने में भी बहुत हेल्प करता है। बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया गया है विटामिन ई तुमने क्यों नहीं शुरू करी थी रिकॉर्डिंग? वो होस्ट थी इसलिए मैं नहीं कर पाई। मैंने शुरू किया था तो दिखा रहा था होस्ट रिकॉर्डिंग करेंगे। So I'm back. थोड़ी सा ग्लिच आ गया था बीच में। Monica ma'am, just a minute. I'm interrupting you. May you allow me to record so that I will record it on my computer, because then you have to take pain and send the entire recording to us. Okay. I'll give you the rights of the host. Right to record. Yes.
So now should I stop recording and would you initiate it? I have made Yes, you yes, the host. I've started recording. I've started recording. Okay, okay, fine. Ma'am, once you started, then my screen sharing goes away. I can't share the screen now. I made you the host, ma'am. Okay, okay. You start, there's no more to start recording. I'm already recording. Okay, okay. So research is more research is warranted on vitamin A dose requirements. And as I told you, vitamin C is important not only with respect to iron absorption, but again, it is an anti-aging vitamin. It is useful in collagen, and collagen actually is useful for tissue health. And अगर vitamin C levels normal होते हैं in the elderly, then they have a lower prevalence rate of cataract that happens with age. They have a higher HDL-C concentration, और आपको पता है कि HDL-C जो होता है वो protective होता है against heart diseases, and there is a lower rate of coronary artery diseases. इसके साथ साथ में around 60 to 100 milligram अगर हम खट्टे फलों से फ्रेश फ्रूट से लेते हैं विटामिन, तो इट हैज मेनी अदर बेनिफिट्स इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग आवर इम्यून रिस्पॉन्स. और पीछे 2 साल में जो कोविड की स्टडीज हुई हैं, उनकी स्टडीज की मेटा एनालिसिस से भी हमें पता चलता है कि नेचुरल विटामिन सी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फार्माकोलॉजिकल विटामिन सी जो दवाइयों की फॉर्म में खाई जाती है, फूड से आने वाला विटामिन सी जो होता है वो लंग हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है. इसके अलावा अगर फॉलिक एसिड कम खाया जाता है तो होमोसिस्टीन लेवल्स बढ़ते हैं, और होमोसिस्टीन लेवल्स बढ़ते हैं सीरम के अंदर, तो दैट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आर्थराइटिस एंड अदर सच प्रॉब्लम्स दैट कैन बी सीन इन एल्डरली पेशेंट्स. तो ये जो सारे चीजें हैं यहाँ पे आपको दिख रही हैं, अलग अलग विटामिन के ये रिक्वायरमेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एल्डरली मेन एंड एल्डरली विमेन. वैसे ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे अगर आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे एल्डरली रिक्वायरमेंट्स 2020 जो कि न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन अगर आप नोट करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं. उसके बाद अगर आप ये जितनी पिक्चर में चीजें दिख रही हैं इनको पार्ट बनाते हैं जीरियाट्रिक डाइट का, तो इससे बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स उनकी बॉडी में जाते हैं. सेलेनियम जाएगा, विटामिन ई जाएगा, विटामिन सी जाएगा, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स जाएंगे, और भी ढेरों तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स उनकी बॉडी में जाएंगे, उन्हें कैंसर, आर्थराइटिस इस तरह के रोगों से बचा देंगे और एंटी एजिंग इफेक्ट लाएंगे उन्हें और उनकी बॉडी को काफी समय तक यंग रखेंगे. सिमिलर इज द कंसेप्ट ऑफ फाइटोकेमिकल्स. प्लांट्स में जितने न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी सब्सटेंस पाए जाते हैं उनको हम फाइटोकेमिकल्स कहते हैं, विच वी नो अराउंड 5000 ऑफ देम एज ऑफ नाउ, जो न्यूट्रिएंट्स नहीं है पर प्लांट्स में पाए जाते हैं. These phytochemicals also have functional benefits. तो जितना प्लांट फूड्स और जितना हो सके रॉ फॉर्म में हम एल्डरली को देते हैं, लेकिन सेफ्टी को ध्यान रखते हुए, फूड सेफ्टी को, धुला हुआ हो प्रॉपर्ली, तो उसके भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं. और उससे कैरोटीनॉइड्स बॉडी में जाते हैं, पॉलीफिनॉल्स जाते हैं, कैटेशिन्स जाते हैं,
curcumin जाता है, फाइबर जाता है, ये सारे फाइटोकेमिकल्स विल हैव गुड इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द एल्डरली। और एक चीज और जिस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस देना चाहूंगी, many elderly are very susceptible to dehydration, उनका फ्लूइड इनटेक प्रॉपर नहीं होता है। तो दिन में करीब 2 से 3 लीटर पानी पीना, फ्लूइड्स पीना, पानी के अलावा कोकोनट वाटर, छाछ, इस तरह की चीजें पीना बहुत जरूरी होता है, ताकि उनको डिहाइड्रेशन ना हो, उनका मेटाबॉलिक प्रोसेस अच्छा बना रहे, कॉन्स्टिपेशन ना हो और बॉडी आराम से डिटॉक्स होती रहे। सो दिस पीपल जनरली फॉरगेट, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पे ध्यान नहीं दिया जाता है। अब एज के साथ पानी पीना वो भूल जाते हैं, उस पर भी बहुत ध्यान देना जरूरी होता है। तो अब मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ, 3 बज भी गए हैं, 1 मिनट ऊपर ही हो गया है। और साथ में यही कहना चाहूंगी, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि rather than focusing on wrinkles, we should try and bring a twinkle in the eyes of the elderly, and we all, if we try wholeheartedly, we can do it. तो अपने घर पे भी हमें ध्यान रखना है एल्डरली का, कम्युनिटी, सोसाइटी, देश के एल्डरली की भी जिम्मेदारी हम पर बहुत ज्यादा है। और जाते जाते इन नेल्सन मंडेला के इन वर्ड्स ऑफ विजडम से अपनी बात खत्म करती हूँ कि अगर किसी भी सोसाइटी में वृद्ध जनों का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो वो सोसाइटी अपने डूबने की कगार पे आ जाती है, डी रूट होने की कगार पे आ जानी चाहिए। और ये चीज हमें अपने घरों से शुरू करनी है। ऑल एल्डरली पीपल शुड बी टेकन केयर ऑफ, और उनकी नॉलेज से हमें बहुत कुछ सीखना होता है। वी हैव टू रिमेम्बर दैट इफ यंग एज is the gift of nature, then old age is a work of art. बहुत एक्सपीरियंस होता है उनको, उनसे बहुत कुछ सीखने को होता है। जो गलतियां उन्होंने की हैं उनसे हम बच सकते हैं उनकी बात सुनने पे। सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने देश की प्रगति के लिए एल्डरली की जो नॉलेज है, उनका जो विजडम है, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनको ठीक से यूटिलाइज करें, उन्हें हेल्दी रखकर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। आई होप मैं आपकी नॉलेज बढ़ाने में थोड़ा बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ पेशेंट हियर। Thank you, ma'am. Thanks a lot, ma'am. It was wonderful hearing you. I'm sure my students must have benefited from your lecture, and Thank you, ma'am. they must have enjoyed it. Thank you, ma'am. And they must be going back home with something new, some new vision. So I'm so thankful to you. We will look forward hearing you more in future. And I'm sorry once again for the inconvenience caused to you. And your lecture was interrupted in between. No issues. Okay, no ma'am. issues. Yeah. Okay, thank you so much. Pleasure. Students, कुछ पूछना तो नहीं है ना? Students, आप hello? No, ma'am. No, ma'am. Okay, okay. Thank you, ma'am, so much. Students, Bye, you can all. leave the meeting now. Okay, Thank ma'am. you, ma'am. Okay, thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. हाँ, कर दो, हम मैम से फोन कर ले।
कोई दिक्कत नहीं है। So now should I stop recording and would you initiate it? Yes, I yes, have made you the I've host. started recording. I've started recording now. Okay, fine. Ma'am, once you started, then my screen sharing goes away. I can't share the screen now. I made you the host, ma'am. Okay. You start, there's no more to start recording. I'm already recording. Okay. So research is more research is warranted on vitamin A dose requirements. And as I told you, vitamin C is important not only with respect to iron absorption, but again, it is an anti-aging vitamin. It is useful in collagen, and collagen actually is useful for tissue health. And अगर vitamin C levels normal होते हैं in the elderly, then they have a lower prevalence rate of cataract that happens with age. They have a higher HDL-C concentration, और आपको पता है कि HDL-C जो होता है वो protective होता है against heart diseases, and there is a lower rate of coronary artery diseases. इसके साथ साथ में around 60 to 100 milligram अगर हम खट्टे फलों से फ्रेश फ्रूट से लेते हैं विटामिन, तो इट हैज मेनी अदर बेनिफिट्स इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग आवर इम्यून रिस्पॉन्स. और पीछे 2 साल में जो कोविड की स्टडीज हुई हैं, उनकी स्टडीज की मेटा एनालिसिस से भी हमें पता चलता है कि नेचुरल विटामिन सी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फार्माकोलॉजिकल विटामिन सी जो दवाइयों की फॉर्म में खाई जाती है, फूड से आने वाला विटामिन सी जो होता है वो लंग हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है. इसके अलावा अगर फॉलिक एसिड कम खाया जाता है तो होमोसिस्टीन लेवल्स बढ़ते हैं, और होमोसिस्टीन लेवल्स बढ़ते हैं सीरम के अंदर, तो दैट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आर्थराइटिस एंड अदर सच प्रॉब्लम्स दैट कैन बी सीन इन एल्डरली पेशेंट्स. तो ये जो सारे चीजें हैं यहाँ पे आपको दिख रही हैं, अलग अलग विटामिन के ये रिक्वायरमेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एल्डरली मेन एंड एल्डरली विमेन. वैसे ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे अगर आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे एल्डरली रिक्वायरमेंट्स 2020 जो कि न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन अगर आप नोट करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं. उसके बाद अगर आप ये जितनी पिक्चर में चीजें दिख रही हैं इनको पार्ट बनाते हैं जीरियाट्रिक डाइट का, तो इससे बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स उनकी बॉडी में जाते हैं. सेलेनियम जाएगा, विटामिन ई जाएगा, विटामिन सी जाएगा, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स जाएंगे, और भी ढेरों तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स उनकी बॉडी में जाएंगे, उन्हें कैंसर, आर्थराइटिस इस तरह के रोगों से बचा देंगे और एंटी एजिंग इफेक्ट लाएंगे उन्हें, और उनकी बॉडी को काफी समय तक यंग रखेंगे. सिमिलर इज द कंसेप्ट ऑफ फाइटोकेमिकल्स. प्लांट्स में जितने न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी सब्सटेंस पाए जाते हैं उनको हम फाइटोकेमिकल्स कहते हैं, विच वी नो अराउंड 5000 ऑफ देम एज ऑफ नाउ, जो न्यूट्रिएंट्स नहीं है पर प्लांट्स में पाए जाते हैं. These phytochemicals also have functional benefits. तो जितना प्लांट फूड्स
और जितना हो सके रॉ फॉर्म में हम एल्डरली को देते हैं, लेकिन सेफ्टी को ध्यान रखते हुए, फूड सेफ्टी को, धुला हुआ हो प्रॉपरली, तो उसके भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं। और उससे कैरोटीनॉइड्स बॉडी में जाते हैं, पॉलीफिनॉल्स जाते हैं, कैटेशिन्स जाते हैं, कर्क्यूमिन जाता है, फाइबर जाता है। ये सारे फाइटोकेमिकल्स विल हैव गुड इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द एल्डरली। और एक चीज और जिस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस देना चाहूंगी, many elderly are very susceptible to dehydration. उनका फ्लूइड इनटेक प्रॉपर नहीं होता है, तो दिन में करीब 2 से 3 लीटर पानी पीना, फ्लूइड्स पीना, पानी के अलावा कोकोनट वाटर, छाछ, इस तरह की चीजें पीना बहुत जरूरी होता है, ताकि उनको डिहाइड्रेशन ना हो, उनका मेटाबॉलिक प्रोसेस अच्छा बना रहे, कॉन्स्टिपेशन ना हो और बॉडी आराम से डिटॉक्स होती रहे। सो दिस पीपल जनरली फॉरगेट, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पे ध्यान नहीं दिया जाता है। अब एज के साथ पानी पीना वो भूल जाते हैं, उस पर भी बहुत ध्यान देना जरूरी होता है। सो अब मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ, 3 बज भी गए हैं, 1 मिनट ऊपर ही हो गया है। और साथ में यही कहना चाहूंगी, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि rather than focusing on wrinkles, we should try and bring a twinkle in the eyes of the elderly, and we all, if we try wholeheartedly, we can do it. तो अपने घर पे भी हमें ध्यान रखना है एल्डरली का, कम्युनिटी, सोसाइटी, देश के एल्डरली की भी जिम्मेदारी हम पर बहुत ज्यादा है। और जाते जाते इन नेल्सन मंडेला के इन वर्ड्स ऑफ विजडम से अपनी बात खत्म करती हूँ कि अगर किसी भी सोसाइटी में वृद्ध जनों का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो वो सोसाइटी अपने डूबने की कगार पे आ जाती है, डी रूट होने की कगार पे आ जानी चाहिए। और ये चीज हमें अपने घरों से शुरू करनी है। ऑल एल्डरली पीपल शुड बी टेकन केयर ऑफ, और उनकी नॉलेज से हमें बहुत कुछ सीखना होता है। वी हैव टू रिमेम्बर दैट इफ यंग एज is the gift of nature, then old age is a work of art. बहुत एक्सपीरियंस होता है उनको, उनसे बहुत कुछ सीखने को होता है। जो गलतियां उन्होंने की हैं उनसे हम बच सकते हैं उनकी बात सुनने पे। सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने देश की प्रगति के लिए एल्डरली की जो नॉलेज है, उनका जो विजडम है, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनको ठीक से यूटिलाइज करें, उन्हें हेल्दी रखें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। आई होप मैं आपकी नॉलेज बढ़ाने में थोड़ा बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ पेशेंट हियर। Thank you, ma'am. Thanks a lot, ma'am. It was wonderful hearing you. I'm sure my students must have benefited from your lecture, and Thank you, ma'am. they must have enjoyed it. Thank you, ma'am. And they must be going back home with something new, some new vision. So I'm so thankful to you. We will look forward hearing you more in future. And I'm sorry once again for the inconvenience caused to you, and your lecture was interrupted in between. No Okay, issues, ma'am. no issues. Okay, thank you so much. Pleasure. Students, कुछ पूछना तो नहीं है ना? Students, आप hello? No, ma'am. No, ma'am. Okay, okay. Thank you, ma'am, so much. Students, you Bye can all. leave the meeting now. Okay, Thank ma'am. you, ma'am. Thank you so much.